آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیاد شاہد کے ساتھ اور میں ہوں رانا مظہر۔ ناظرین، اس حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور کیسز میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آج کے حوالے سے بات کی جائے تو 19 اموات آج ہوئی ہیں اور 800 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن میں مخالفت کر دی ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئے گی تو بے روزگاری میں کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ طبی آلات بنانے کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان نے فواد چودھری کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وینٹیلیٹر پاکستان میں بنائے جائیں اور اس کو ایکسپورٹ بھی کیا جائے۔ دوسری جانب بات یہ بھی کریں گے کہ ایک طرف تو حکومتی ارکان لوگوں کو کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہہ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہوں یا پھر ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہو، کہ دھجیاں بکھیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے اور طبی ماہرین کی جانب سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پنجاب حکومت نے ڈاکٹرز کی تنخواہوں کے حوالے سے جو کٹوتی کا فیصلہ کیا تھا، میڈیا پر یہ خبر چلنے کے بعد اب اس فیصلے کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں بات کریں گے کہ عرفان خان کے بعد رشی کپور بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں شفیق اوان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے زیاد شاہد صاحب۔ سب سے پہلے سر آغاز کروں گا آپ سے۔ فواد چودھری صاحب کی تعریف کی آج وزیر اعظم عمران خان نے، اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کام کرے وفاقی یہ جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرے خیال زیاد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ۔ زیاد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ زیاد صاحب آئے کہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر نے اس نمائش کا افتتاح بھی کیا ہے کہ پاکستان جو ہے طبی آلات جس میں وینٹیلیٹر جیسی چیز ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اس کو ایکسپورٹ کریں اور فواد چودھری کی تعریف کی ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا کی پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ میں وینٹیلیٹر کم ہے، برطانیہ میں کم ہے، پاکستان میں تو بہت ہی کم ہے۔ اس طرح سے چھوٹے اور ترقی پذیر ملکوں میں تو بہت ہی اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان جو ہے جو وینٹیلیٹر تیار کیا ہے انہوں نے، اگر وہ معیاری نکلا، اس سے پہلے سیالکوٹ سے مقامی طور پر بھی جو سرجیکل ایکوپمنٹ بنا رہے ہیں، تو پوری دنیا میں پاکستان کے سرجیکل ایکوپمنٹ جو ہیں ان سے آپریشنز میں تیاری میں مدد لی جا رہی ہے، اور پاکستان اس سے بہت زر مبادلہ بھی کما رہا ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو پاکستان کے ہسپتالوں میں جو کمی ہے اس کو دور کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جس طرح وزیر اعظم نے کہا ہے اس کو ہم پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور چھوٹے ملکوں میں بے تحاشا اس کی ضرورت ہے اور اس کی کھپت ہے۔ زیاد صاحب یہ اپنا بجٹ کے حوالے سے یہ ایک تجویز آج آئی ہے کہ امیر ترین لوگوں پہ سپر کورونا ٹیکس لگا دیں، تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا امیر ترین لوگوں کی تعریف کیسے ہوگی؟ ان کے اصل میں یہ ضروری ہے اس سلسلے میں کہ حکومت فوری وضاحت کرے کہ ان کے نزدیک جو مالدار افراد ہیں ان کی انکم کی میعاد کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ اب ایک شخص کی نظر میں جو ہے 1 لاکھ روپے بہت بڑی تنخواہ ہے، اور دوسرے کی نظر میں 70 لاکھ تنخواہ ہے، تیسرے کی نظر میں خود ہمارے چینلز میں بعض لوگ جو ہیں وہ 2-2 کروڑ روپے لے رہے ہیں، اور جو مختلف لوگ جو اداروں میں ملازم ہیں، جو ملٹی نیشنلز ہیں، ان کے سربراہ جو ہیں وہ 7-7 8-8 لاکھ روپے تک تنخواہیں لے رہے ہیں۔ تو کوئی تعداد کا تعین تو مقدار کا ہونا چاہیے کہ کس انکم سے زیادہ کو سرمایہ دار یا امیر سمجھا جا رہا ہے۔ زیاد صاحب 2 بڑے اداکار رشی کپور اور عرفان خان انتقال کر گئے بالی ووڈ کے۔ اس میں سے جی میں عرفان خان سے تو زیادہ واقف نہیں ہوں، کیونکہ وہ جب
पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों पर पाबंदी थी, तो उस वक्त वो आए लेकिन बहुत कामयाब हुए और मुसलमान अदाकार का इतनी तेजी से कामयाब होना बड़ी बात है। उनकी वफात पर बड़ा अफसोस है। लेकिन जो ऋषि कपूर है वो तो एक ऐसे खानदान से है जिसका दाता भी जो है पृथ्वीराज, जो मुगल आजम में मुगल आजम बने हुए थे, और उनके वालिद राज कपूर जो खुद बहुत बड़े एक्टर थे, उनके दोनों अंकल जो थे वो भी बहुत बड़े एक्टर थे, और इसी तरह से उनके भाई भी दोनों एक्टर थे, और अब उनके बेटे जो हैं रणधीर कपूर और उनके भाई, और जो उनके बेटे जो हैं बेटे रणबीर कपूर जो हैं वो भी बहुत नामवर अदाकार हैं। तो ये फैमिली जो है ये 5 नस्लों से इंडिया पर छाई हुई है, और ये ऋषि कपूर दुनिया की नामवर तरीन फिल्म जो बड़ी मकबूल हुई पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में इंडिया की बनी हुई बॉबी, उससे इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, और राज कपूर इनके वालिद उसके डायरेक्टर थे, और ये मशहूर गाना इन पर फिल्माया गया था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक्टर थे, और पिछले दिनों मैंने सुना था कि इनको कैंसर हो गया और ये अमेरिका में 1.5 साल इलाज के लिए भी रहे, लेकिन अल्लाह ताला को जो जिंदगी मंजूर नहीं होती तो उसको फिर इसी तरह से अंजाम उसका होता है। वो जब इलाज के बाद वापस आए तो फिर अब उनका इंतकाल हो गया, वो कैंसर से उनकी वफात हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जाशाह साहब। जाशाह साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आज बड़े लाइट मूड में थे। जी लाइट मूड में थे। आपकी तरफ आऊँगा, तिब्बी इलाज बनाने के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन वो ज़िया साहब लाइन पे, उसमें आपका कमेंट चाहूँगा कि तारीफ की है वज़ीर। हाँ देखें, आज मैं वो देख रहा था लाइव, तो उसमें ये बड़ी खुश आइंद बात है कि जब पढ़ते थे या फवाद चौधरी ये जिक्र करते थे कि हम ये वेंटिलेटर और जो पीपीई और जो दूसरी अपना हिफाजती किट्स हैं कोरोना के हवाले से, वो हम खुद बनाएंगे और एक्सपोर्ट करें, तो हम हैरान होते थे, क्योंकि आज तक कभी ऐसे हुआ नहीं कि किसी ने इस तरह तवज्जो दी है। उन्होंने ये किया और ये करके दिखा दिया, और बिलाशुबा वो तारीफ के मुस्तक हैं। और दूसरी जानिब सर हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी की वजह से केसेस में इजाफा हो रहा है। आज भी 19 हलाकतें हुई हैं, 800 से ज़ायद जो अफराद हैं वो मुतासर हुए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि लॉकडाउन में नरमी की जाएगी, तो ये समझ में आ रहा है कुछ कि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी यही बातें हो रही हैं कि लॉकडाउन में नरमी। देखिए, बलूचिस्तान ने 15 मई तक एक्सटेंड कर दिया इसको जी, और सिंध के आज वज़ीर आला थे, आज उन्होंने मशवरा करना था प्राइम मिनिस्टर से और सदर आरिफ अलवी से कि वो लॉकडाउन को ईजी कर रहे हैं ताकि कारोबार खुले। सर फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। चौधरी साहब आज बल्ले बल्ले हो गई है, की कहता है ये, कुछ डिटेल बताएं। आप कामयाब हो गए बिल आखिर, जो आपने अभी हम बात कर रहे थे कि फवाद चौधरी जब कहते थे कि हम वेंटिलेटर यहाँ बनाएंगे, पीपी यहाँ बनाएंगे, जो हमारी एसेंशियल चीज़ें हम यहाँ बनाएंगे, तो उस वक्त हमें यकीन नहीं होता था, क्योंकि आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं, और आपने ये करके दिखा दिया। देखें, बस एक तो अल्लाह की मेहरबानी है, दूसरा असल में इशू ये है कि ये जो मिनिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, ये काफ़ी इग्नोर रही है, और दुनिया फ्रेंकली, मैं पहले भी बात करता रहा हूँ कि आप रूटीन के आलू टमाटर मटर बेच के आप अपने खसारे पूरे नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैंने मीडिया में भी, आपको पता है, जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, मैं बात कर रहा था कि अपने बिजनेस मॉडल्स को आपको देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन आपको देखनी पड़ेगी, अदरवाइज ये बड़ी तेजी से दुनिया आगे जा रही है और ये हम बड़े पीछे रह जाएंगे। यहाँ पर भी आकर के हमने यही मैंने कोशिश की है कि जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, साइंस है, उसको बढ़ाया जाए, उसका एक हम रवायत पाकिस्तान में डालें। और ये आप देखिए कि सिर्फ 2 महीने पहले हम इनमें से कोई चीज खुद नहीं बना रहे। हमें तफसील बताएं, आप क्या क्या आपने अचीव किया है।
लेकिन ये 26 फरवरी को पहले 2 केस पाकिस्तान में डिटेक्ट हुए हैं। उस वक्त हम कुछ चीज पाकिस्तान में अपनी नहीं बना रहे थे। हमारा यहाँ से आप शुरू कर लें कि ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं जो वो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा था, हैंड सैनिटाइजर जो थे वो 1 हफ्ते के अंदर यहाँ शॉर्ट हो गए थे। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स के जो पहनने के कपड़े हैं, पीपी जिनको कहते हैं, मास्क थे, हमारे ग्लव्स हैं, ये इनसे लेकर के टेस्टिंग किट्स तक, वेंटिलेटर्स तक, हर चीज पाकिस्तान में हम बाहर से मंगवा रहे थे। आज जो तकरीबन 10-12 हफ्तों के अंदर हम तकरीबन इस जो हमारा 76% जो टोटल मर्चेंडाइज है हॉस्पिटल्स का, अब हम खुद अपना बना रहे हैं। सैनिटाइजर में पाकिस्तान ये कर रहा था, आप ये कर रहे थे कि जो अल्कोहल है यानी एथेनॉल वो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि शुगर मिले हैं, हम $1 बिलियन की एथेनॉल एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हम सैनिटाइजर नहीं बना रहे थे। तो अब हमने यहाँ पे अब हम इतना सैनिटाइजर बना रहे हैं कि हम सैनिटाइजर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अब मास्क हैं, पीपी किट्स है, फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है सारी, ये इतने पीपी किट्स और चीजें बना रही है कि हम इसकी भी एक्सपोर्ट की पोजीशन में है। और इसी तरह से जो हमारी वेंटिलेटर है, हमारा जो टेस्टिंग किट्स हैं, ये सारी बिल्कुल अपनी लाइसेंसिंग स्टेजेस पे है। और पाकिस्तान इस रीजन में आप ये चाइना के बाद मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाला इंशाल्लाह 1 साल में आप देखेंगे यहाँ पूरा कल्चर चेंज हो जाएगा जहाँ तक मेडिकल डिवाइसेस बनाने का ताल्लुक। चौधरी साहब, ये कोरोना के हवाले से अभी तक कंफ्यूजन है। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इसको ईज किया जाए, आपके सिंध के सीएम उस पर सख्ती पे के कारबंद हैं, और बलूचिस्तान ने 15 दिन के एक्सटेंशन दे दिए। इस पे हमारा को हम इकट्ठे एक बयाने क्यों नहीं हो सका? अपोजिशन एक तरफ है और हुकूमत एक तरफ है। ये देखें, ये एक तरफ होता हो भी नहीं सकता। हम एक्चुअली डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में ओपिनियंस का फर्क रहता है। और ये लोकल जो गवर्नमेंट्स है, अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ तो गवर्नर और मेयर जो है उनकी ओपिनियन अलग है। मतलब जो न्यूयॉर्क के मेयर है वो खोलना चाहते हैं, वहाँ के गवर्नर जो है वो उन्होंने नहीं खोलने दिया। तो ये एक हर जगह के ऊपर अपना अपना लोकल इशूज है। ये बड़ा मुश्किल फैसला है। जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने भी बयान दिया कि आप किस तरह से अगर मुकम्मल लॉकडाउन करते हैं तो फिर आप क्या मजदूरों का क्या करेंगे, दिहाड़ीदारों का क्या करेंगे। जो हमारा फॉर एग्जांपल अभी देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी जो इस वक्त शुरू हो रही है पंजाब में, वो गंदम काटने की है। अब आप बताइए कि अगर आप इस वक्त लॉकडाउन कर देंगे और अभी गंदम जो है आप नहीं ना संभाल सके तो आपके यहाँ पे तो आगे जाके जो है वो आटे का बुरान पैदा हो जाएगा। 3 दिन सिंध ने जो है वो लॉकडाउन किया आपकी गाड़ियों का। गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा कि आपके डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। तो ये चीजें बड़ी आपने कैलकुलेटेड चलनी है। ये कोई 2+2 वाला मामला नहीं है, बड़ा ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है और इसको रोजाना के तौर के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने तो आपकी तारीफ की और असद उमर साहब ने आपको अपना सियासी उस्ताद मान लिया है, तो आपके मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो 18वीं तरमीम पर ये खप पड़ी हुई है, ये क्या हकीकत है? हुकूमत कह रही है हम कुछ नहीं कर रहे, अपोजिशन कह रही है कर रहे हैं, ये माजरा है क्या आखिर? देखिए, ये एक हमेशा हर 2-4 महीने बाद एक इशू जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें मसला ये है कि ये जो 18वीं तरमीम है इसमें 2 पार्ट है। एक तो हिस्सा है जो डेवोल्यूशन का, यानी इख्तियारात जो है वो वफाक से सूबों में जो आए हैं उस हिस्से पे इत्तेफाक है सारी पार्टीज का। ये इख्तियारात हमें मजीद नीचे लेके जाने चाहिए, इजला और तहसील की सतह के ऊपर हमें जो है ये लेके जाने चाहिए। लेकिन इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि ये जो 18वीं तरमीम है, 19वीं और 20वीं तरमीम, इनके ऊपर एक बड़े डायलॉग की जरूरत है। हमारे जो अगर आप जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार देखें उस पर बहुत एतराजात है और उस पर कहा जाता है कि जजेस का कंसोर्शियम बन गया है जो सिर्फ जजेस जो है वो लगा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस तरीके से जो हमारे कोऑर्डिनेशन है सूबों में, वफाक में, फॉर एग्जांपल अगर आप हायर एजुकेशन कमीशन की बात लें तो हायर एजुकेशन कमीशन का सूबों से ताल्लुक भी, हमारी यूनिवर्सिटियां जो है वो रैंकिंग में रोज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही हैं। ये चीजें जो है इनमें जाहिर है कि इसके ऊपर आपको बेहतरी लानी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, ये नैब ऑर्डिनेंस का बैलून आया और फट गया, लेकिन हुकूमत ने ये वजाहत नहीं की कि आखिर वो लाना क्या चाह रही है। ना फरोग नसीम साहब ने बताया, ना शहजाद अकबर साहब ने बताया। तो असल पीछे
یہ کوئی اراؤنڈ 3 مہینے پہلے جب یہ آرڈیننس آیا تھا تو پارلیمان میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کا حصہ جو تھا وہ میں بھی اس کا حصہ تھا. اس میں یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ ایک دیکھیں نون لیگ یہ ہم نے نہیں بنایا ہوا لا, نہ ہی اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیئرمین سے لے کے نیچے کو چپڑاسی تک ہم نے کی ہوئی ہے, ایک بھی اپوائنٹمنٹ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ لا بدلنا چاہیے, ہم نے کہا کہ آپ اپنا جو بدلنا چاہتے ہیں وہ ہمیں ڈرافٹ دے دیں. پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم نے سینٹ سے قانون چینج کرایا ہے, آپ اس کو کنسیڈر کریں. اب پی ایم ایل این نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے, پیپلز پارٹی وہ آرڈیننس جو ہے اس پہ اپنے لا پہ پرسو نہ کرے, ایک مشترکہ قانون ہم دیتے ہیں. وہ مشترکہ جو قانون دینا تھا وہ اب تک جو ہے وہ حکومت کو بھی نہیں ملا اور میں نے پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا ان کو بھی نہیں ملا. تو اصل پرابلم جو آ رہی ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے آ رہی ہے, جنہوں نے آرڈیننس میں یا لا میں جو امینڈمنٹ دینی ہے وہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن جو امینڈمنٹ دینی ہے وہ دے ہی نہیں رہے. این ایف سی ایوارڈ کے بھی کافی کھینچتانی ہو رہی ہے, اس پہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو آلریڈی ایک سیٹل ایشو ہے. کس کے اوپر؟ این ایف سی ایوارڈ. نہیں, این ایف سی ایوارڈ میں بھی ہر چونکہ 10 سال کے بعد ریویو ہونا ہوتا ہے تو وہ اس میں بھی جو ہے وہ ریویو ہوگا. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ میں بھی ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں 6,000 ارب ٹوٹل آمدن ہے آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں سے 2,000 ارب روپیہ آپ نے جو قرضے لیے ہیں اس کے سود میں چلا جاتا ہے, 1600-1700 ارب روپیہ آپ اپنے ڈیفینس بجٹ میں دیتے ہیں اور اس کے بعد 2300 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کا چلا جاتا ہے صوبوں کو. تو وفاق تو -600 ارب روپے سے اپنا سال شروع کرتا ہے. تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے. پھر سب سے بڑی پرابلم ہے آرٹیکل 140 امپلیمنٹ نہیں ہوا, صوبوں میں جو پیسہ جا رہا ہے وہ اضلاع میں اور ڈسٹرکٹس میں جا نہیں رہا. اس لیے اس میں بھی بات چیت کی ضرورت ہے. پروونشل گورننس میں اصلاحات کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے. اچھا, 18ویں ترمیم پہ گورنمنٹ کیا موقف ہے؟ گورنمنٹ کیا چیز صوبوں سے لینا چاہتی ہے؟ کیا ہے اس میں امینڈمنٹ؟ گورنمنٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو پورا ڈیٹیل میں جیسے سے بتایا کہ اس میں جو ایشوز ہیں وہ کوارڈینیشن کے ایشوز ہیں پروونس کے اور صوبوں کے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو صحت اور تعلیم 2 بنیادی جو ایریاز ہیں اس میں کیا کوارڈینیشن ہوگی وفاق کی پالیسی اور صوبے کی پالیسی میں, کہاں پہ جو ہے وہ آپس میں انہوں نے آپس میں مرج کہاں ہونا ہے, یہ نقطہ وہاں پہ نہیں ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے ادارے ہیں جن کی کوئی کوارڈینیٹڈ جو ایک کوارڈینیشن ہے وہ موجود نہیں. فار ایگزامپل ٹورزم آپ دیکھیں, آپ کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے ٹورزم, لیکن ٹورزم پوری دنیا میں فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے کیونکہ باہر سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے. یہاں پہ ٹورزم کا پتہ ہی نہیں کہ کسی نے کیا کرنا ہے. سو بے شمار چیزیں ہیں جن میں آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہونی ہے. لیکن دیکھیں نا, حکومت کے پاس تو وہ اکثریت نہیں ہے, تو اس پہ کیا کنسنسس ہوگا یا کیسے اس پہ آپ جو آپ چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی اپنی امینڈمنٹ لا سکے, کیسے آئیں گے یہ؟ نہیں دیکھیے یہ چیزیں تو ہوتی ہی کنسنسس ہے نا. اس میں تو آئین میں جو ترمیم ہے وہ تو آئین کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہوتی ہے اور کنسنسس ڈاکومنٹ ہونی چاہیے. یہ اگر آپ آئین میں اس طرح سے اگر آپ زبردستیاں کرنے شروع کر دیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ جو 68ویں ترمیم کے ساتھ جو ہوا وہ تو پھر وہی ہوگا نا. جس طرح لیے آپ نے ظاہر ہے ایک پی ایم ایل این پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان کنسنسس ہوگا تو یہ ہوگی, نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. اچھا, وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آپ کے اپنے گولز نیکسٹ گولز کیا ہیں؟ یہ تو آپ نے گول اچیو کر لیا, یہ بہت بڑی سروس ہے آپ کی اس ملک و قوم کے لیے. دیکھیے اس میں ہم نے جو بھی میرا امیڈیٹ 2 بڑے گول ہیں جن کو میں کرنا چاہتا ہوں. ایک ہم جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی پارک بنانا چاہتے ہیں جو ایشیا کا, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا بایو ٹیکنالوجی پارک ہوگا. اسپیشلی جو ہربل میڈیسن کا ہم تقریباً 200 ایکڑ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس کے اوپر ہم ہربل میڈیسن جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں پاکستان میں.
اور اس کے ساتھ ایکسٹریکشنز اور یہ سارا جو کام ہے وہ ہم لانا چاہتے ہیں. دوسرا جو بڑا کام ہے وہ ہم بنانا میں چاہتا ہوں, جیسے ہمارا ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے, اسی طرح سے میں ایگریکلچر میکینیکل کمپلیکس بنانا چاہتا ہوں جس میں ہم اپنے ایگریکلچر ڈرون بنا سکیں, جس میں ہم لیزر لیبلنگ مشینز بنا سکیں, ایگریکلچر روبوٹس بنا سکیں, سینسرز بنا سکیں. وہ پروجیکٹ بھی ہمارا تقریباً تیار ہے. تو یہ 2 پروجیکٹس انشاءاللہ اگلے 1 سال میں میرا ارادہ ہے کہ یہ مکمل. اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے. اچھا, آپ میڈیا کے تعلقات گورنمنٹ کے ہمیشہ آپ اس کے دائی رہے ہیں, اب شبلی فراز آ گئے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو میڈیا اور حکومت میں گیپ تھا اس میں کچھ جو دوری تھی وہ ختم ہو جائے گی یا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو شبلی فراز ہیں اور عاصم باجوہ صاحب ہیں, یہ دونوں بڑے ڈگنیفائڈ لوگ ہیں. پھر ان کا اپنا قد ہے, یہ بات کر سکتے ہیں. پہلی جو ٹیم تھی اس کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ان کی اپنا کوئی قد نہیں تھا, اور جب آپ کی اپنی حیثیت نہ ہو تو پھر آپ کوئی رول پلے نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا ایک قد ہے, ان لوگوں کی ایک حیثیت ہے. تو میڈیا کے کئی ایسے معاملات جو پہلے حل نہیں ہو سکے, یہ آرام سے ان کو حل کرا سکتے ہیں, اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں, ڈگنیفائڈ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اس سے حالات ڈیفینیٹلی بہتر ہیں. جی بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے ناظرین واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شفیق عوان صاحب. سر, یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ایک طرف تو حکومتی ارکان دیکھیں کہ لوگوں میں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے جو نمائندے ہیں وہی SOPs کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری صاحب کو وہ دبئی سے آئے ملتان ایئرپورٹ پر اور وہ لاہور آ گئے, حالانکہ اصول تو یہ نا 14 دن کرنٹینہ میں رہنا ہے. اب دیکھیں یہی نا, اگر حکومت خود یہ اسکرین پہ ٹی وی پہ آ کے یہ جو حفاظتی اقدامات جس کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ اسٹیپس لیں, اگر خود وہ اس کو اوائڈ کریں گے, خود اس کو ٹالریٹ کریں گے, تو لوگ کیسے ان کی باتوں کو بائے کریں گے, کیسے ان پہ عمل کریں گے. اب دیکھیں دبئی سے جو فلائٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے ملتان سے آئی, اس کے تمام مسافروں کو کرنٹائن کر لیا گیا, لیکن ڈپٹی اسپیکر کیونکہ وہ طاقت والے تھے, کیونکہ وہ ڈپٹی اسپیکر تھے اور وہ اقتدار سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے وہ تمام پابندیوں کو توڑتے ہوئے ساتھ اپنے 2-3 رشتہ داروں کو بھی لے کے وہ لاہور آ گئے. اب دیکھیں اس میں ہمارے اداروں کی کمزوری ہے نا. اب وہاں پہ دیکھیں ASF یا جو وہ سیکورٹی ادارے ہیں, جب تک کوئی باہر سے بندہ آتا ہے وہ پراپر کوارنٹائن اور اس میں نہ چلا جائے, اس کو باہر نکل ہی نہیں دیتے. سر یہ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی صاحب نے. السلام علیکم لیاقت صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کے احسان ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, یہ تازہ ترین صورتحال بتائیے گا کیا ہے کرونا کے حوالے سے آپ کے صوبے میں؟ جی کرونا تو اس وقت تازہ ترین صورتحال بلوچستان اور ملک میں جو چل رہا ہے, بلکہ بین الاقوامی دنیا اس وقت تقریباً پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. بلوچستان گورنمنٹ میں اپنے تئیں ایک تو جو کمپوننٹ ہے گورنمنٹ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم ایسے طریقے سے پورے کرتے ہوئے پورے بلوچستان میں اس وقت 7 ہم نے کوارنٹائن سینٹر اسٹیبلش کیے 7,000 لوگوں کے لیے, اور 71 ہم نے آئسولیشن فیسلٹی اسٹیبلش کیے ہیں 1700 لوگوں کے لیے. اس میں بالکل سیپریٹ آئسولیشن فیسلٹیز ہیں, 460 بیڈڈ. ایک نیا آئسولیشن سینٹر جو ہے ہمارا کوئٹہ میں اسٹیبلش ہو رہا ہے, اور ایک اور ہے کوئٹہ میں 10 کے مقام پہ بیڈڈ آئسولیشن فیسلٹی. سیکنڈ فیز میں اس پہ 1000 بیڈ کا اور ہم اضافہ کریں گے, اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہم نے. اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے, کتنے افیکٹڈ لوگ ہیں, کیا پوزیشن کیا ہے؟ افیکٹڈ لوگ جو ہے 1031 ہیں ٹوٹل اس وقت بلوچستان میں, جس میں سے 838 ہمارے لوکل جو ہے ٹرانسمیشن ہے, اور اس کے علاوہ کوئی ہم نے ابھی 9000 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں, اور لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ 1031 افراد میں جو مارٹیلٹی ریٹ ہے بلوچستان میں الحمدللہ وہ پورے ملک میں سب سے کم تر ہے 1.5%. اچھا, لاک ڈاؤن کی صورت لاک ڈاؤن جو ہے لاک ڈاؤن ہم نے 17 مارچ کو
ये डिसीजन लिया था और इसी दिन सिंध ने भी ये फैसला किया और लॉकडाउन हमारी बरकरार थी। फिर आगे जाके हमने एक्सटेंड किया फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम 5 मई तक और फिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ सेक्टर हमने रिलैक्स किए, जिसमें कंस्ट्रक्शन का शोबा है और एग्रीकल्चर में सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं। चूंकि व्हीट हार्वेस्टिंग सीजन आ गई है तो व्हीट हार्वेस्टिंग प्रेजेंट हैं, लेबरर्स हैं और इक्विपमेंट की जो मूवमेंट है उस पर बैन लिफ्ट किया है, बट विद सर्टेन एसओपीज। आज मैं आपको टीवी पे सुन रहा था, आपके हवाले से खबर चल रही थी कि अगर लॉकडाउन पर लोगों ने अमल ना किया तो आप सख्ती करेंगे और कर्फ्यू की तरफ जा सकते हैं। जी जी, इसके पीछे क्या था? ये जो इस्तिलाह है लॉकडाउन का, ये 17 मार्च के बाद जो है मुख्तलिफ इस पे ओपिनियन रहे हैं। इस्तिलाह इस्तेमाल हुआ है कंप्लीट लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन। बलूचिस्तान गवर्नमेंट का रोज अव्वल से नुक्ता नजर ये है कि कोई भी लॉकडाउन जो कर्फ्यू से एक कदम भी कमतर हो उसको हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कह सकते। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब होगा कर्फ्यू। हम बलूचिस्तान के अवाम को यही गुजारिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोशिश ये है कि कोरोना का तदारुक भी हो सके, लोग अपना वक्त गुजारें ज्यादा घरों में और कुछ सेक्टर जो हमने रिलैक्स किए हैं वो भी जारी रहें ताकि लोगों का मईशत है, रोजगार है, वो चलता रहे। अगर लोगों ने इन एसओपीज को प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो फिर हम कंप्लीट लॉकडाउन की जानिब जा सकते हैं, अल्टीमेटली जिसका एक ही मतलब होगा कर्फ्यू। तो क्या आपके लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं? लेकिन लोग फॉलो कर रहे थे, लोग 80% फॉलो करना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन जब हमने कुछ सेक्टर जब रिलैक्स किए उसके बाद लोगों को ये लगना शुरू हो गया कि शायद कोरोना का जो खतरा व खर्चा है शायद वो टल गया है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ सेक्टर रिलैक्स किए हैं। और इस रिलैक्सेशन का नुकसान ये हुआ कि लोग जो है वो रिलैक्स माइंडसेट में चले गए। तो उसके बाद फिर हमने 2 और डिसीजन लिए। एक तो ये कि हर वो शख्स जो लॉकडाउन के एसओपीज को वायलेट करेगा उनको हम अरेस्ट करके जो कोयटा में क्वारंटाइन सेंटर है वहां मुंतकिल करेंगे। दूसरा, 18 मार्च को एक और हमने नोटिफिकेशन जारी किया कि बगैर से जरूरत अगर कोई शख्स अपने घर से बाहर निकलता भी है तो फिर उसका मास्क पहनना या मुंह और नाक को किसी चादर, किसी कपड़े या मफलर शॉल से ढांपना ये मैंडेटरी होगा। अगर कोई बड़ा अच्छा स्टेप लिया ये एसओपी वायलेट करेगा उनको भी हम अरेस्ट करके क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल करेंगे। तो इस बुनियाद पे हम जो हमारे डिसीजन है उनको इम्पोज कर रहे हैं। गिरफ्तारियां भी हुई हैं, आज भी 75 शॉप्स हमने सील किए हैं जो ये वायलेट कर रहे थे एसओपी और कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं। 116 ऐसी गाड़ियां जिनमें लोग जो है एक से ज्यादा लोग सवार थे, ब्लैक शीशे लगाए थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया और शीशे जो है ना गाड़ी। अच्छा लेकिन सब सिंध ने जो अपना जौमे अली और हमारे एक जो शिया भाई हैं उनके हवाले से जो प्रोसेशन होते थे उन पर पाबंदी लगा दी है, तो क्या आपके सूबे ने कैसा स्टेप लिया है? अभी इस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया। अच्छा, इस कोरोना से हट के आगे बजट भी आ रहा है, असेंबली का इजलास भी होना है और आपकी पोजीशन भी कह रही है कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए, तो उस हवाले से क्या तैयारी की है कि बजट और असेंबली के इजलास के हवाले से? बजट के तो मीटिंग जो है अभी चंद दिनों में वो हमारी शुरू हो जाएंगे और बजट का प्रोसेस वो तो चलता रहेगा। जब बजट जो असेंबली में टेबल होगा तो फिर देखते हैं कि उस पर बलूचिस्तान गवर्नमेंट और स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली ये उनका डिस्क्रिप्शन है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। जी सर, इनके ज्वाइन करने से पहले बात कर रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए 2018 में, नारा यही था एहतसाब का और इदारों को खुद मुख्तार बनाने का। ये जो हुकूमती अरकान हैं ये SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं और ये भी इत्तलात हैं कि जो दोस्त मेज़ारी साहब हैं जब वो वापस आए और उसके बाद उनसे कहा गया, उन्होंने कहा कि हमें वज़ारत दाखिला की जानिब से ये नोटिफिकेशन या जो भी असल में मसला ये ना, जैसे उससे लियाकत साहब से पहले हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे इदारे मजबूत होते हो तो इनको वहीं रोक लेते। अगर मैं आप जो कोई आम आदमी जाता है तो उसको वहीं वो डिटेन कर लेते हैं जब तक कि उस पर पूरा SOP उस पर लाद दें, उस पर अमल ना कर दें, उससे क्वारंटाइन में रखते हैं। लेकिन क्योंकि ये ताकतवर शख्स थे कि आ गए, अब वो उन्होंने वहाँ से कितने लोगों को मिले होंगे, 3-4 इनके अजीज थे, बाहर भी होंगे, यहाँ आके कितने को मिले होंगे, यहाँ आके सुना कि घर से होके गए वो। उनके गवर्नर जो सिंध हैं
उनको कोरोना हुआ, फिर जो एक MP है उनको हुआ और उनके घर के तमाम लोग मुतासर हो गए। अब ये तो जो पंजाब के वज़ीर आला उनको नोटिस लेना चाहिए। अगर आप इस डिप्टी स्पीकर नहीं फॉलो करेंगे आपके अपने SOPs को, तो लोग कैसे फॉलो करेंगे? फिर आपको तमाम वो चेन चेक करनी पड़ेगी किन लोगों से मिले हैं, और एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये VIP जो है उनके खुद ख्याल करना चाहिए, वो आवाम के नुमाइंदे हैं। अगर वो SOP जो अमल नहीं करेंगे और जितने लोगों से मिले हैं, खुदा न खास्ता हम नहीं कहते उन्हें कोरोना है, लेकिन ये किसी पे माथे पे नहीं लिखा हुआ, कोई टेस्ट नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई बैज नहीं है कि ये कोरोना है प्लस ये कोरोना नेगेटिव है। इसलिए जब तक हमारे जो जिनको हम फॉलो करते हैं हमारे हुक्मरान वो उस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर कल बाकी लोग भी कहेंगे आपके डिप्टी स्पीकर गए हैं तो भाई मुझे क्या मसला, मैं भी उसी तरह का इंसान हूँ, तो फिर ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सर, बजट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मुशीर खजाना हफीज शेख की जानिब से कहा गया कि जून के पहले हफ्ते में बजट आएगा, और अब बजट में ये भी तजवीज़ जा रही है कि अमीर लोगों में कोरोना टैक्स लगाने की तजवीज़ एक दी गई है। आप समझते हैं कि इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? अब देखें ना, अमीर लोग कौन होंगे, और फिर उसमें देखें वो सैलरी क्लास को भी शामिल कर लेंगे। अगर तो देखें हमारे यहाँ टैक्स सिस्टम इतना कमजोर है कि हमारा जो अमीर तरीन लोग हैं वो टैक्स देते हैं सैकड़ों में, और जो सैलरीड पर्सन है वो देता है लाखों में। बहुत कम हमारे बिजनेसमैन हैं जो अरबों का कारोबार करते हैं लेकिन टैक्स देते हैं हजारों में। अब आपको पैमाना क्या होगा कि आपस क्या पैमाना है कि फलां अमीर है फलां गरीब है। अगर आप टैक्स की उस पे टैक्स पे देते हैं कि ये इतना टैक्स देता है, तो फिर तो उसमें चंद लोग आएंगे, और जो लोग वाकई टैक्स देने के काबिल हैं वो टैक्स नहीं दे रहे और अरबों के वो कारोबार करते हैं, तो वो उसमें नहीं आएंगे। पहले आप ये तारीफ करें कि हमारत क्या है, अमीर क्या है, क्या आया वो इसमें। अगर सब लोग नहीं आएंगे, ताजर नहीं आएंगे, सियासतदान नहीं आएंगे, इसमें बिजनेसमैन नहीं आएंगे, तो फिर तो ये उन्हीं पे जो तनख्वाहदार तबका है उन्हीं पे लगेगा, या ऑलरेडी जो टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पे लगेगा। पहले आप ये देखें, जैसे आपने इतना बड़ा डेटाबेस बनाया है ये एहसास प्रोग्राम के हवाले से, तो ये देखें आप, ये तो हफीज शेख साहब, मुझे याद है जरदारी दौर में हफीज शेख साहब आए थे, तो उन्होंने एक स्कीम दी थी कि ये जो घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, कनाल के घर हैं, उनकी मार्किंग की थी कि इनसे पूछेंगे कितना टैक्स देते हैं, उस पे अगर वो टैक्स नहीं देते तो उन पे टैक्स लगाएं, तो वो फिर हटा दिए कि ज़ाहिर है हमारे यहाँ लॉबी और माफिया बड़े ताकतवर हैं। तो आप पहले ये एक तय कर लें कि आपके नजदीक अमीर तरीन कौन है। होगा ये है कि तनख्वाहदार तबका, और वही अभी तक जो टैक्स दे रहे हैं वही तबका जो है वही देगा, बाकी जो है जो आपको जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ताजर और दूसरे जो लोग हैं, वो उससे निकल जाएंगे। हाफिज हफीजुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है सर। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। जी वालेकुम साहब, आप कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ शुक्र। अच्छा, तो पहले तो जो है सबसे हॉट इशू कोरोना का बताएं, वो कैसा जा रहा है आपके, और आप पिछली बार आपने बताया था कि आप काफी हद तक आपने कंट्रोल पा लिया उस पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक वही सिचुएशन ही है कि अभी इस वक्त अगर आप देखें तो हमने कोई 4,500 टेस्ट किए हैं, और 339 हमारे टोटल जो है वो पॉजिटिव केस हैं, और इसमें जो रिकवरी हुई है वो 246 की हुई है, और एक्टिव केसेस इस वक्त हमारे पास 90 हैं, और डेथ हमारी जो है वो टोटल 3 है, और जिसकी परसेंटेज वाइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो एक्टिव केसेस हैं उनकी 28.54 है, और डेथ रेट जो है वो 0.28 है, 38, और रिकवरी रेट जो है 72.58 है। ये तो हमारी जो है वो समरी है। इस वक्त जैसा हम रैंडम टेस्टिंग हमने शुरू की है गुज़श्ता 5-6 दिन से ना जी, यानी हमने एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितने डॉक्टर्स पैरामेडिक थे, उसके अलावा जितने फ्लोर मिल थे, हजाम थे, जितने भी लॉकडाउन में दुकानें खुली थी, उन सब का भी हमने जो है वो सैंपलिंग शुरू की है, और फिर रैंडम टेस्टिंग करते हैं, यानी जिनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, जिनकी कोई कॉन्टेक्ट का बजाय कोई मालूम नहीं है, तो कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई करके हम वहां पे रैंडम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हमने टारगेट रखा हुआ है 5 मई तक हमारा लॉकडाउन है। अच्छा। और बाकी मुल्क की निस्बत यहाँ पे लॉकडाउन थोड़ा सख्त है। यहाँ पे जुम्मा, हफ्ता और इतवार, इसमें तकरीबन कंप्लीट लॉकडाउन है, और बाकी दिनों में हम जिनको जो है वो दुकानें खोलने की जो टाइमिंग हम दे रहे हैं कारोबार को,
उसका सिर्फ 8 बजे से लेके 12 बजे तक, कभी 4 बजे जी तक। बिल्कुल, ये आप पहले ही बता चुके हैं। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला किया गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर के हवाले से, उसके हवाले से बताएं, उसकी जरूरत क्यों पेश आई, उसकी इसके क्या असरात होंगे? देखें, एक निकम्मी और नालायक वफाक में हुकूमत बैठी हुई है बदकिस्मती के साथ, वो हर फैसले को, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है हाफिज साहब। जी मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। हुआ ये था, गिलगित बल्तिस्तान में 2018 का एक ऑर्डर चल रहा था जो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने दिया था, जिसके तहत ये निजाम कायम है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी असर नो बनाया, और 2019 का वफाक और सूबे ने मिलके एक प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसपे हमारी सैकड़ों मीटिंग वफाक के साथ हुई, और अभी तक उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। मीनवाइल ये प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारे 2 महीने बाद हुकूमत का टेन्योर पूरा हो रहा है, तो हमारे पास चूंकि एक वैक्यूम आ गया, उस वैक्यूम में केयरटेकर सेटअप और जो मुल्क में इलेक्शन लॉज थे, जो 2017 में जो इलेक्शन लॉज बनाए गए थे, उसको जीबी में एक्सटेंड करना था। अच्छा, उसके लिए हमने सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को बार बार इब्तिदा किया कि आप जरा खाब खरगोश से निकलें और जाएं सुप्रीम कोर्ट, जाके आप ये इजाजत ले लें, कम से कम ये 2 तरमीम तो फौरन जो है वो करके दें, ताकि टाइम पे इलेक्शन का जो निजाम है वो बन सके। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने एक फैसला दिया है गिलगित बल्तिस्तान के मुतालिक, जिसका आज 1 साल 4 महीने हो गए हैं। उस फुल बेंच के फैसले पे ताइंदम जो है वफाकी हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करा सकी है। अब उन्होंने इंटरम जो है रिलीफ जो हमें जो इलेक्शन के हवाले से सिर्फ 2 उसमें तरमीम जो है वो की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के उस फुल बेंच ने फैसले में ये लिखा था कि आइंदा जो भी जीबी के हवाले से आप तरमीम करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के साथ आप करेंगे। हम सब ये कोरोना तो ज़ाहिर खत्म होगा, तो ये बस टाइम बड़ा कम रह गया, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि कोरोना के बाद आपको बजट की तैयारी, फिर आपका असेंबली सेशन, उस हवाले से आप क्या स्टेप ले रहे हैं? देखिए, हमने 5 मई को अपनी असेंबली का इजलास तो बुलाया है, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत, चूंकि हमारा हाल काफी बड़ा है और नई हमने असेंबली बनाई है, उसमें हमारे 33 टोटल मेंबर हैं, तो उसमें हम जो है वो 5 मई को पहला सेशन हम कर रहे हैं, और उसके बाद बजट की तैयारी के हवाले से ही वो सेशन हमारा हो रहा है। हमने चूंकि ये बजट पेश करना है, जून से पहले हमारा लास्ट टेन्योर है ये जून तक, और इस दौरान अभी मालूम नहीं है कि वफाक अपना जो है वो बजट किस तरह का बनाते हैं, क्योंकि वफाक के बजट के बाद हम यहाँ बजट पास करते हैं सूबे। तो अब वफाक ने सूबों के लिए क्या रखा है, हमारे पास डेवलपमेंट के लिए वो क्या देते हैं, हमारे जो एक्सपेंडिचर जो कोरोना, आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। जी मेहरबानी। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान हाफिज अजीजुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, और शफीक अवान साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।